Good morning, class 8. Welcome back to your chemistry classroom once again. Now I am going to start molecular weight. Relative molecular mass. Look at your book. Relative molecular mass is equal to number of times one molecule of substance is heavier than the mass of an atom of hydrogen. So actually what is relative molecular mass? So कोई भी substance का एक molecule is heavier than the mass of an atom of hydrogen. That is equal to the relative molecular mass. Number of times one molecule of substance is heavier than 1/12 of the mass of an atom. So this is equal to the relative molecular mass. Now electronic configuration. Distribution of electrons is an atom. This portion is very important. Orbits. Electrons revolve around the nucleus in imaginary paths called orbits or shell. Different orbits are there. K cell, fast cell. Number of electron is there 2. Maximum number is 2. Cell number 1. L, second cell, cell number 2. Dot ऐसे M N different types of cell. So basically orbit किसको बोलेंगे? Electron revolve around the nucleus in an imaginary pathway. जिसको हम बोलेंगे क्या? Orbit और shell. So there are different cell. First cell is K. Next second cell is L. Third cell is M. Next cell is N. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंशियल, ये ब्रैकेट में जो लिखा है ये पूरा याद करना है. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल. एक सेल में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकता है उसको हम कैसे निकालेंगे? देयर इज अ फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? 2n स्क्वायर. 2n स्क्वायर बाय व्हिच वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल. इस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके हम निकाल सकते हैं हर सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है. सो लुक एट द फर्स्ट सेल, K सेल 2n स्क्वायर. वेयर इज द नंबर ऑफ सेल? कितना? फर्स्ट. दैट्स व्हाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर मीन्स 2. सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन K सेल दैट इज 2. अगेन L सेल. Formula is there 2n square. So n means number of cell, that is 2. So 2 to square means 4. So 4 2s are 8. So the maximum number of electron in L cell that is 8. Same way M cell 2n square. So same way 2 2s are 9. So 9 2s are 18. So the maximum capacity of electron in M cell that is 18. So what is the formula? So student, you have to learn the formula only. Then you can easily find out the number of electron in each cell. First of all, number of electrons in each cell we can find out with the help of particular formula, that is 2n square. Here is n mean the number of cell. So we can find out easily number of maximum cell is there. So basically we can find out moreover 4 cell. K, L, M, N. There are some example. Outermost shell cannot have more than 8 electrons. ये रेड लाइन में जो लिखा है इस लाइन को बहुत केयरफुली याद रखना. Outermost shell cannot have more than 8 electrons. So normally आउटर मोस्ट अगर को एलिमेंट का अगर आउटर मोस्ट लेयर एम होता है तो उस लेयर में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 8. क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आउटर लेयर में अगर 8 इलेक्ट्रॉन ना हो तो पर्टिकुलर एलिमेंट कंपाउंड कुछ भी हो वो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं ले सकता है. प्लीज स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. लास्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन ना हो
तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन उधार लेना पड़ेगा या ज़्यादा होने पे हम इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे देंगे। मगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मौत से लास्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी आई मीन जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 8 होना चाहिए, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में भाग लेने के लिए एज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट शेल को मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8 होना चाहिए। सो हियर आर सम एग्जांपल। सोडियम एटम देखो, प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन number of electron is here 11. For what? Because the number of proton and electron are equal, that's why number of electron is 11. So 11 होने के कारण उसका हम कितना सेल चूज करेंगे? फर्स्ट सेल जिसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 2, देखो 1 2। नेक्स्ट सेकेंड सेल एल जिसका कैपेसिटी कितना है 8 एंड द आउटर मोस्ट लेयर एम जिसमें कितना है 1। तो आउटर मोस्ट लेयर अगर 1 है मगर आउटर मोस्ट लेयर को कितना होना चाहिए 8, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसका जो 9 हो रहा है आउटर मोस्ट लेयर में 9 होना चाहिए, तो हम वो एक सेल को मतलब बढ़ा दे रहे हैं, मतलब वो दूसरों को हम एक इलेक्ट्रॉन उधार दे देंगे। एक्चुअली दिस पोर्शन के लिए बोर्ड वर्क की ज़रूरत है, मगर हम ऐसे कोशिश कर रहे हैं तुम लोगों को समझाने की। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेसिकली इनर सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, और क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से अगर सजाएंगे तो सेकेंड सेल में 8 होगा, थर्ड सेल में कितना होना चाहिए 18, मगर है कितना 1। सो आउटर मोस्ट सेल में हमको कितना ज़रूरी है 8। सो हम एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन इधर एक अकेला पड़ा है इसको हम दूसरा कोई एलिमेंट को उधार दे देंगे। उधार देने के कारण क्या होगा, इसका आउटर मोस्ट लेयर कितना हो जाएगा, आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगा एल। तो आउटर मोस्ट सेल में एल होने के कारण वहाँ पे तो ऑलरेडी 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसका ये वाला नीचे वाला जो सेल डिवीजन है ये करेक्ट है 2 8 1। नेक्स्ट कैल्शियम एटम, प्रोटॉन 20, सेम वे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 20 होने के कारण फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8 हो गया 10, और एम सेल में कितना है, एम शेल में कितना है ऑब्वियसली 10, मगर 10 हम नहीं रख सकते, 18 चाहिए। 18 तो मेरे पास है नहीं, तो इसलिए ऑलरेडी क्या लिखा है देखो, लास्ट लेटर में क्या लिखा है बोल्ड लेटर में, आउटर मोस्ट सेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। सो हम आउटर मोस्ट लेयर को 8 कर लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन और किसी को उधार दे देंगे। उधार देने के कारण मेरा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सो लास्ट सेल पॉजेस 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आइसोटोप्स। Isotopes are atoms of same element having the same atomic number but different mass number. So isotopes are atoms of same element. एक एलिमेंट का 2 एटम्स डिफरेंट मास नंबर वाला, मतलब सेम एलिमेंट सोज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, देन सेम जो आइसोटोप मतलब जो एटम्स रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे आइसोटोप्स। लुक एट द एग्जाम्पल, ये पिक्चर को छोड़ो, 1H1 नीचे वाला है एटॉमिक नंबर, ऊपर का है मास नंबर। हियर इज हाइड्रोजन का देखो 1H1, सेम वे हियर इज 1H2। सो हियर एज द सेम एलिमेंट इज हियर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, mass number is different but atomic number is same. So here as the same atoms shows different mass number, that's why they are isotope of each other. Same way here is 1H2 and 1H3. So whereas the mass number is same but they shows different atomic number, atomic number is same but shows their different mass number, that's why they are isotopes of each other.
सो आइसोटोप हम किसको बोलेंगे? एक एलिमेंट का डिफरेंट एटम, whereas the number of atomic number is same, I mean atomicity same, but the mass number will be different from each other. तब जाके हम दो एटम को हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर. This portion you will just follow carefully. No need to learn. You have to understood the process. कैसे करना है, क्योंकि this type of figure may be come in exam. Look at the example. First hydrogen, helium, lithium. Heading follow करो. The atom arrangement of electron in atom. क्या है? प्रोटॉन इज 1, सो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा. तो न्यूक्लियस के बाहर फास्ट सेल कितना है उसका? के में मैक्सिमम कितना होना जरूरी है? ऑब्वियसली 2 नहीं है कितना? 1 होने के कारण मैक्सिमम सेल में हमको क्या करेंगे? नॉर्मली है उसको किसी को उधार दे देंगे, नहीं तो और किसी से उधार लेके उसका मैक्सिमम सेल मतलब लास्ट सेल में थ्रू कर लेंगे. सो ऐसे ही हर मतलब जितना भी सारा फिगर है यू विल फॉलो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो नॉर्मली हम वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे. हैव यू एनी प्रॉब्लम? जस्ट आस्क मी. आई विल डिस्कस दिस पोर्शन वंस अगेन बिकॉज दिस पोर्शन इज क्वाइट टफ. So hope all of you understood. So for today, up to this portion.